ابراہیم علیہِسسلام بتوں کی تذلیل کی، بعد میں ان کفار کا، ان کافروں کا سالانہ میلہ لگتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سالانہ میلے میں طرح طرح کے کپڑے، طرح طرح کے کھانے، نئے نئے اس میلے کے دوران اس بت خانے میں رکھ کر ایک جلسہ گاہ میں وہ جاتے تھے۔ وہ جلسے گاہ سے جب واپس لوٹتے ہیں، میلے گاہ سے جب واپس آتے ہیں، بت خانے میں جاتے ہیں، پھر نئے کپڑے بھی پہنتے تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ جب وہ ٹائم آ گیا میلے کا، اپنے دستور مطابق انہوں نے کپڑے بھی سلوائے نئے اور طرح طرح کے کھانے تیار کر کے اپنے بت خانے کے سامنے رکھ کر میلے گاہ پر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہِسسلام حضرت ابراہیم علیہِسسلام دل میں سوچا کہ یہ ابھی مجھے موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہِسسلام کے پاس وہ دعوت لے کر آئے کہ آپ بھی چلیں ہمارے میلے پر، دیکھیں ہمارے دین میں کیا کیا نہ ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہِسسلام نے فرمایا میں نہیں جا سکتا، انہوں نے منع کر دیا۔ تو سامنے ذی وقار جب وہ میلے پر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہِسسلام کلہاڑا لے کر اس بت خانے میں تشریف لے گئے۔ سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہِسسلام نے فرمایا آپ یہ تمہارے سامنے موجود ہیں، تم کھاؤ، تم کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ لیکن بت پتھر کے بنے ہوئے وہ کہاں کھائیں گے، وہ کہاں جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ابراہیم علیہِسسلام نے فرمایا آپ نہیں کھاتے، آپ کلہاڑا اٹھایا، کلہاڑا اٹھا کر اس بت خانے میں تمام بت موجود تھے، کافی بت موجود تھے، کسی کا کان توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا۔ ایک جو بڑا بت تھا وہ کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس کے کندھے پر رکھ کر واپس چلے آ گئے۔ جب وہ کافر کفار واپس آئے میلے سے، جب بت خانے میں گئے، دیکھا تو ہمارے خداؤں کا برا حال ہو گیا، کسی کا کان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں۔ وہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، یہ ہمارے خداؤں سے کس نے یہ برا حال کیا؟ جب سارے اکٹھے ہو گئے، سارے جمع ہو گئے، ہاں بھائی کس نے کیا؟ جانچ کرو۔ پھر ایک یا دو بندوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہِسسلام کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ آپ جاؤ تو میں تمہارے خدا سے برا حال کروں گا، وہی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہِسسلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا، تمام مجمع والوں نے، جو سردار تھے، بادشاہ نہیں سردار جو نچلے سطح کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے ہاں بھائی تو نے ہمارے خداؤں سے یہ ظلم کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ ابھی تو مجھے موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا، ابھی مجھے موقع مل گیا بات کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مجمع میں اعلان کہا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں نے تمہارے خداؤں سے یہ برا حال کیا؟ تو یہ تمہارے خدا ہیں، یہ تمہارے بت
इनसे अपने पूछो अपने खुदाओं से कि ये हाल उनसे किसने कहा। शायद हो सकता है ये जो बड़ा बुत है इसके कंधे पर कुलाना है, शायद इसने गुस्से में आकर अपने खुदाओं से किया होगा। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, जब ये सवाल इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम ने किया, सारे खामोश हो गए फिर वक्त। बाद में फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, ये तो बोल भी नहीं सकते। उन्होंने से किसी ने कहा ये बोल नहीं सकते, ये बता नहीं सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये बता नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, तो आप इनको खुदा कैसे मानते हो? आप ये खुदा कैसे मानते हो? तो मेरे मुस्तफा करीम आखिर चलते चलते बात आ गई निमरूद बादशाह तक। निमरूद बादशाह तक बात आ गई। निमरूद ने बुलाया, हाँ इब्राहिम, तूने हमारे खुदाओं से ये हशर किया, तुमने अच्छा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं, जब भी निमरूद लाइन के बारगाह में जो भी बंदा जाता था उसको सजदा करता था। बाद में गुफ्तो शुनीद होती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको सजदा नहीं किया, ऐसे डायरेक्टली जाकर गुफ्तो शुनीद हुई, बातचीत हुई। हर निमरूद को यहां भी गुस्सा आ गया। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब बोलने लगे तूने हमारे खुदाओं से ये हाल किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम मुझसे पूछते हो? अपने खुदाओं से पूछो। लेकिन वो लाजवाब हो गए, जवाब नहीं थे। लेकिन आपस में मशवरा किया कि अभी क्या करना चाहिए। ये फैसला तय हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जाए, आग में जलाया जाए। तो रिवायत के अंदर मौजूद है 30 गज लंबी, 20 गज चौड़ाई, उसने 4 दीवारी बनाई। पहले अभी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जेल में बंद कर रखा, कैद कर रखा है। जब वो तैयार होकर अभी निमरूद ने ऐलान किया कि अभी तैयार है, जो जो अपने खुदाओं से, जो जो बुतों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है अपने खुदाओं से, वो लकड़ियां जमा करे। लकड़ियां जमा होने शुरू हो गई। किसी ने मन्नतें मांगी कि अगर हमारी तबीयत ठीक हो गई तो हम इसमें लकड़ियां डालेंगे। तरह तरह के मन्नतें शुरू हो गई। मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, जब लकड़ियां जमा हो गई, आग जलाया गया। लेकिन आग इतनी स्पीड थी, इतनी ऊंचाई तक पहुंची कि अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाले कैसे, अभी इसमें दाखिल कैसे करें, किसे फेंके। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, लेकिन एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स आया, चादर ओढ़ी हुई है, बुजुर्ग की तरह। वो आकर कहने लगा, निमरूद वालों से खिताब किया, मुखातिब हुआ कि हाँ भाई आप कैसे परेशान हो रहे हो। उन्होंने कहा कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे खुदाओं से बुरा हाल किया, ये जालिम है, हम इसको अपने खुदाओं का बदला लेना चाहते हैं, अभी इसको इस आग में डालना चाहते हैं। लेकिन अभी आग इतनी भड़क उठी कि नजदीक कोई करीब जा नहीं सकता कि हम अभी इसको कैसे अंदर दाखिल करें, कैसे फेंके। अलायाज़ु बिल्लाह। उसने कहा मैं आपको तरीका बताता हूं। जब उसने ये कहा कि मैं आपको तरीका बताता हूं, तो बहुत उसकी फिर रिस्पेक्ट हुई, उसकी इज्जत हुई।
कि ये बंदा रास्ता निकाल रहा है। उसने कहा जी हाँ आप बताएं। उसने कहा आप ऐसे एक मंजनीक बनाओ, मंजनीक बनाकर जो उसमें रस्सियां होती हैं, तो जब उसको हिलाओगे, जब आग दरमियान में पहुंचे तो उसकी रस्सियां जो हैं वो काट देना। ये बंदा बताने वाला ये कौन है? वो बंदा शैतान था। इंसानी शक्ल में आकर वो बता रहा है कि आप इस तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जहन्नम में डालना है, यानी उसके लिए जहन्नम में आग में डालना है। तो वही तरीका अपनाया गया, लेकिन वो किस तरीके से, कैसे उसको मालूम हुआ? वो इस वजह से वो शैतान लाइन पहले उसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, फरिश्तों का उस्ताद था, लेकिन वो जहन्नम का भी शेर किया करता था, जन्नत का भी शेर किया करता था। उसने देखा कि जहन्नमियों को कैसे डाला जाता है, फिर भी उसको वही बात याद आ गई कि आप इस तरह तरीके से करें। तो मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम के उम्मतियों, जब उन्होंने कहा ठीक है, ये बात बिल्कुल आपने सही फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी तरीके से आग में डाला गया। जब आग में जा रहे थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर कहने लगे, बोलने लगे, हाँ इब्राहीम कोई बात है, कोई मदद चाहिए, तो मैं जिब्रील मैं मौजूद हूं, ये आपका पैगाम अल्लाह की बारगाह में लेकर जाऊंगा, आप बताएं, आप हुक्म करें। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है अब उसका खलील। लेकिन इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई जरूरत नहीं, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है कि अभी उसका खलील, उसका दोस्त अभी आग में जा रहा है, मुझे आपकी जरूरत नहीं। अगर अल्लाह इस काम में राजी है तो इब्राहीम खलीलुल्लाह भी राजी है। तो मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम के उम्मतियों, फिर दूसरे फरिश्ते आए, पानी का फरिश्ता आया, पानी का फरिश्ता कहने लगा, ए इब्राहीम आप हुक्म फरमाएं, अगर मेरी जरूरत हो, मेरी मदद की जरूरत हो, मैं पानी से ये आग को बुझा डालूं, आपसे यहां से बचा लूंगा, आपकी अगर मदद चाहिए। उसने कहा जरूरत नहीं, अगर अल्लाह इस रजा में राजी है, इब्राहीम भी राजी है, तो मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम के उम्मतियों, जब ये मामला हो गया, लेकिन कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुलना या नार कूनी बरदुन व सलामुन अला इब्राहीम, हमने हुक्म दिया आपको कि इब्राहीम पर सलामती वाली ठंडी हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में गए, कुफार खुश हो गए कि अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में जलकर खत्म हो गए, अलियाज़ु बिल्लाह। लेकिन काफी दिन के बाद जब देखा कि हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम फूलों पर जलवा परोस है। एक रिवायत के अंदर यह भी है, मौजूद है कि उसकी बेटी, निमरूद की बेटी, अपने बंगले पर ऊपर चढ़कर देखती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर बैठे हैं फूलों पर, चारों तरफ से बंदे उसको पंखा है चला रहे हैं, हवा दे रहे हैं। वो परेशान होगी, इतनी आग में ये जिंदा है। लेकिन उसने आवाज दी,
इब्राहिम आप मुझे इजाजत दे, मैं भी अंदर आपके पास आ सकती हूँ, मैं भी आऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अगर आप कलमा पढ़े बाद में छलांग लगाए वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं। उसने हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम का कलमा पढ़ते हुए छलांग लगाए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। ये है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ।